ये मेरा प्लान है कि अगर मैंने इसको अच्छे से बड़े लेवल पे लेके जा सकी तो मैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ करना चाहूँगी, सो दैट कि उनको एक प्रॉपर फूड मिले, कुछ अच्छा उनको रहने के लिए मिल सके. दैट्स माई ओपिनियन अबाउट दैट, सो दैट आई जस्ट वेंट इन द प्रोग्राम. For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. To your question answer. अगर आपको एक ऐसा लेटर मिलता है जहां पर आपकी नौकरी कंफर्म है एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में और उसी दिन आपको राजकुमार तिवारी का फोन आता है कि आज शाम को आपको मेरे ब्यूटी कॉन्टेस्ट पैजेंट में हिस्सा लेना है, तो लेकिन इसकी जीतने की कोई गारंटी नहीं है, वहां आपको गारंटी के साथ एक ऑफर आता है जॉब का, आप उसे स्वीकारेंगी या राजकुमार तिवारी के ब्यूटी पैजेंट में आकर परफॉर्म करेंगी? गुड लक. Lovely question, I must say, sir. I think I will take the another offer which Rajkumar Tiwari sir ji is going to offer me, because job I always can do it later, and this is my passion which I can pursue it now, and through which as you said कि guarantee नहीं है मैं जीतूंगी या नहीं जीतूंगी, पर मैं I am very sure मैं लोगों का दिल जीत के जाऊंगी. Wonderful, thank you. Well said. Very well, a good answer and a brilliant one. Thank you. Thank you so much. Can we have the contestant please move forward? Next one. And the question comes from Aarti. Are you going to ask the question? Please give us your name. Mrs. Reshma Das from Pune. Mrs. Reshma from Pune. And the question is, Aarti. Reshma, good evening. Good evening, ma'am. As you said, you are from Pune, so you know how Pune is beautiful and green and nice. Yeah. So I would like to ask you, what would you do to, first of all, save and clean up the environment? Thank you, ma'am, for this lovely question. एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए सबसे पहले मैं अपने घर से ही स्टार्ट करूंगी, अगर एंड उसके बाद बाहर के अवेयरनेस, जैसे कि घर से अगर हम लोग अपनी क्लीनिंग करेंगे, लाइक डोंट यूज द प्लास्टिक, मैं अपनी किड्स को एंड अपने सराउंडिंग को पहले क्लीन करूंगी, देन मैं बाहर की दुनिया को क्लीन करना सकती हूँ. तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू वॉइस आउट हाउ टू क्लीन and transportation, like how to make stop pollution and water problem. So that's why आपके 30 सेकंड पूरे हो गए मैडम. thank you very much. Reshma, I just wanted one मतलब short answer कि I think what you are doing the cleanup नहीं. What is your aspiration? आपकी day to day life में आपने क्या invite किया हुआ है? आप क्या करने वाले नहीं, आप क्या करते हैं? मैं घर में जैसे गार्बेज बैग, वेट गार्बेज एंड ड्राई गार्बेज बैग अलग रखती हूँ, तो दैट इज आल्सो वन थिंग टू क्लीन अप. I think उनके कहने का मतलब ये है कि अपने घर से आप शुरुआत करना चाहती हैं. तो सबसे पहले अगर आपका घर साफ नहीं होगा तो आप बाहर जाके किसी चीज को साफ कैसे करें? मेन मुद्दा है. Thank you so much. Thank you very much. Wonderful thought and a wonderful answer. Next contestant please, number 3, and please give us your name and the question will come from you, ma'am. What's your name please? Srishti Sandana. Srishti. Srishti. Chandana. Chandana. Yeah, Chandana. 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 Okay. Srishti. Chandana. Hello, good evening, Chandana. Your contestant number 4. So I would like to ask you. You are looking so pretty, actually. Thank so you. beautiful. Thank you so much. Okay. मैं जानना चाहती हूँ कि what's your goal? What do you want to achieve in your life? As a lady also, something say different. अच्छा, आप लाइफ में क्या अचीव करना, हाँ क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं लाइक मेरा हिंदी कितनी है, हाँ, बोलो। मैं हिंदी में भी एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, तो थोड़ा बहुत तो बोल लिख दो, ये डिजाइन भी मैंने कुछ बनाया हुआ है. ग्रेट. तो वही पे स्टार्ट करके मुझे कुछ लेवल पे जाना है. फैशन डिजाइन. हाँ. That's really wonderful. चलो रेडी रोल. जो कार्यक्रम था, कहाँ पे कार्यक्रम था, किस नाम थे और क्या अवार्ड आपको मिला है?
This program was in Mumbai, and the name of the program was Mrs. Mumbai Global 2020, and the award was like Achievers Award. So many celebrities came in the program to get the award, like Rajpal Yadav, Sunil Srivastava, Aarti Nagpal, Prithvi. So many celebrities are over there. कहाँ से जिन्होंने हिस्सा लिया इस अवार्ड फंक्शन में, वो कहाँ के लोग आए थे? Different locations people came outside of India, inside of India. जमशेदपुर हो गया, आपको उड़ीसा हो गया, असम हो गया, दुबई हो गया, बहुत सारे सिटीज़ की लड़कियां आई हुई थी एंड सब ने पार्टिसिपेट किया. मुंबई की लड़कियां भी थी जो बेसिकली वहाँ मुंबई में रहती हैं. सो इट वाज अ वेरी लाइक डिफरेंट साइड्स ऑफ इंडिया. पीपल केम ओवर देयर टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट. एक डॉक्टर होते हुए फिर आपने इस प्रोफेशन को चुना, ये सब कुछ कैसे? डॉक्टर तो मैं हूँ, बट दिल में हमेशा ये रहा कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ. सो हमेशा ये रहा कि कुछ अपना नाम हो सके, अपनी एक पहचान हो सके, जिसके भी हाथ पे मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ. तो जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मिसेस ग्लोबल में जाने की, तो आई थॉट आई शुड गो एंड आई शुड मेक माई नेम सो दैट I can do something for the privileged poor people. And now I got the opportunity. So like इस टाइटल के साथ मैं उनके लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहूँगी एंड मैं चाहूँगी कि इस टाइटल को फर्दर यूज़ कर सकूँ, एक बड़े लेवल पे लेके जा सकूँ एंड चैरिटी के वर्क कर सकूँ, सो दैट कि मैं उनके लिए एक NGO इस्टेब्लिश कर सकूँ, पुअर होम इस्टेब्लिश कर सकूँ, ऑर्फन होम इस्टेब्लिश कर सकूँ, शेल्टर होम्स इस्टेब्लिश कर सकूँ, सो दैट कि जो भी एक ओल्ड पीपल हैं शेल्टर पा सकें. और एक मेरा रीज़न ये भी था कि मैं कभी कभी स्ट्रीट डॉग्स को देखती हूँ, तो मुझे बहुत लगता है कि स्ट्रीट डॉग्स जो हैं लाइक उनकी कंडीशंस उतनी मतलब वो नहीं है, दयनीय है काफ़ी. तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ होती थी कि मैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ कर सकूँ. तो ये मेरा प्लान है कि अगर मैंने इसको अच्छे से बड़े लेवल पे लेके जा सकी तो मैं स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ करना चाहूँगी, सो दैट कि उनको एक प्रॉपर फूड मिले, कुछ अच्छा उनको रहने के लिए मिल सके. दैट्स माई ओपिनियन अबाउट दैट, सो दैट आई जस्ट वेंट इन द प्रोग्राम. प्रॉपर कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले? बेसिकली मैं सीतामढ़ी से हूँ, बट मैं मधुबनी की हूँ. उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पिछले कई वर्षों से इस प्रोफेशन में आने के लिए संघर्ष कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा कि हम शायद कामयाब ना हो पाए? क्या कहना चाहिए? निराशा जब मन में आ जाती है तो फिर जगह नहीं बचती, सफलता पाने की जगह खत्म हो जाती है. सो मेरा सजेशन उन लोगों को यही है कि कभी भी अपने मन में निराशा को जगह नहीं देना है. निराशा जिस दिन भी आपके मन में घर कर गई, उस दिन से आप अपने जीवन की हर चीज़ खो देते हैं. आप अपने सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते हैं. पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इंसान को आगे बढ़ने के लिए. अगर आप मेरा एग्जाम्पल देखते हैं तो आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ फिजियोथेरापिस्ट एंड लाइक आई एम जस्ट वर्किंग इन मैक्स भोपा. मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था. मैं जब वहाँ गई थी तो इससे पहले लाइक 2 दिन की तैयारी थी मेरी. आई वॉज वर्किंग एंड होल द टाइम आई हैव टू वर्क लाइक फॉर ऑफिस. सो इट्स लाइक कि इट्स अ जर्नी एंड मैंने अपने सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थी मैं कि येस आई कैन विन दिस एंड आई वेंट ओवर देयर एंड विन द टाइटल. सो लाइक मेरा सजेशन यही है कि चाहे जितनी भी स्ट्रगल्स हो आपके लाइफ में, स्ट्रगल्स आती हैं, हर इंसान के लाइफ में फेजेस आते हैं स्ट्रगल्स के, बट आप उन स्ट्रगल्स के साथ आगे बढ़िए एंड डेफिनेटली यू विल गेट द थिंग्स व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ. फैमिली भी देखना है, डॉक्टर्स भी हैं, इस प्रोफेशन में भी समय देना, कैसे मैनेज करते हैं सारा कुछ सिस्टम? हाँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट हो जाता है, ठीक है. मतलब जॉब भी है, प्रोफेशन है, डॉक्टर भी हूँ, सब कुछ करना पड़ता है, बट साथ में एक अपना कुछ पैशन, इंसान जो इंसान का पैशन होता है उसके लिए हमेशा थोड़ा टाइम इंसान निकाल लेता है. तो ये एक मेरा पैशन था कि मुझे लाइफ में कुछ नेम क्रिएट करना है, आगे बढ़ना है. तो मैंने अपने टाइम को शेड्यूल किया. मैं मॉर्निंग उठ के अपना सबसे पहले जो भी घर के काम होते हैं वो ख़त्म कर लेती हूँ. उसके बाद फिर मेरा ऑफिस का, अपने ड्यूटी का शेड्यूल्स होता है, प्रोफेशन का शेड्यूल्स होता है, उसको मैनेज करती हूँ. फिर एज सुन एज पॉसिबल मैं उससे फ्री होके फिर अपना जो भी मेरा वर्कआउट होता है या फिर जो भी सेशंस होते हैं मेरे, वो लेना स्टार्ट करती हूँ. सो येस, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डिसिप्लिन द लाइफ, बट येस आई डिड एंड आई मैनेज्ड ऑल द थिंग्स. एंड बच्चे को भी देखना पड़ता है, सो आई मैनेज ऑल द थिंग्स एंड नाउ आई एम हियर. फैमिली का कितना सपोर्ट मिला और इस प्रोफेशन में जाने के लिए सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया?
फैमिली का डेफिनेटली बहुत सपोर्ट रहा, एंड बिना फैमिली के सपोर्ट के कोई भी लेडी हो, लड़की हो या फिर औरत हो कभी भी इस मुकाम पे पहुंच ही नहीं सकती है। सो मैं कह सकती हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इन चीज़ों में। एंड हाँ, डेफिनेटली मेरे हस्बैंड, सो इट्स लाइक आशुतोष कुमार झा इज़ माई हस्बैंड, एंड उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरी इस जर्नी में।